भाई क्या रखा है बात करने में? ट्वेल्व 0-0 आपको पीवीआर पढ़ा दिया था ना? तेरी आईपी now guys look here. First of all I am enabling OSPF on R1 interface. किसके इंटरफेस पे एनेबल कर रहा हूं? R1 के राउटर OSPF which process ID राउटर ID नेटवर्क area any number I can use. show IP OSPF neighbor, show IP OSPF interface, sorry brief. Which stated is this? Wait. तो राउटर क्या करता है? देखो, this is the behavior by default. Router is expecting to receive DR and BDR information whenever it is connected on a multi-access segment. क्या बोला मैंने? राउटर जब भी किस पे कनेक्ट होगा? एक मल्टी एक्सेस सेगमेंट पे, वो किसकी इंफॉर्मेशन एक्सपेक्ट कर रहा होगा हेलो पैकेट्स में? डीआर और बीडीआर की। क्लियर? और कितनी देर वेट करता है उस इंफॉर्मेशन के लिए? 40 सेकेंड्स। कितनी देर वेट करता है? 40 सेकेंड्स। दैट पर्टिकुलर टाइमर इज कॉल्ड वेट टाइमर। दैट पर्टिकुलर टाइमर इज कॉल्ड, लेट मी शो यू दैट टाइमर। लुक हियर, अब देख लो फटाफट। वेट टाइमर इज, वेट टाइमर विल ऑलवेज बी इक्वल टू योर डेड टाइमर। वेट टाइमर हमेशा किसके इक्वल होगा? डेड टाइमर के। वेट किसके लिए कर रहा है समझ में आया? इन योर हेलो पैकेट्स इंफॉर्मेशन ऑफ डीआर एंड बीडीआर इज फॉरवर्डेड। इन योर हेलो पैकेट्स इंफॉर्मेशन अबाउट डीआर एंड बीडीआर इज forwarded. So router is waiting for information of DR and BDR from hello packets. If it is not getting information of DR and BDR in first 40 seconds, it will do election itself. It will do election itself. देखो लिखा हुआ है यहाँ, दिखाऊंगा आप सबको। पहली बात पढ़ो क्या लिखा हुआ है। तो पहले उसने वेट टाइमर चलाया, एग्री, फिर क्या स्टार्ट किया? अब डीआर तो मैंने आपको बता दिया। बीडीआर क्या है? बीडीआर इज बैकअप ऑफ डीआर। बीडीआर इज बैकअप ऑफ डीआर। डीआर एंड बीडीआर बोथ विल बी लिसनिंग टू .5 and .6. As your DR will go down, who will take place of DR? BDR. And there will be election for whom? BDR. किसके लिए इलेक्शन होगा? इसका मतलब डीआर हमेशा कौन बनेगा? बीडीआर। तो इलेक्शन में किसके लिए होगा? बीडीआर के लिए। देखो मेरा कंसर्न समझने की कोशिश करो। मैंने बोला लॉजिक क्या बनाया हमने? दैट व्हेनेवर डीआर विल गो डाउन, हु विल बिकम न्यू डीआर? बीडीआर। इट मींस the election which was happening in the back end is actually happening for BDR, not for DR. First of all, the router has to become BDR before becoming DR. DR बनने से पहले राउटर को BDR बनना ही पड़ेगा। तो इलेक्शन किसके लिए होता है? BDR के लिए। But we call it DR election. But we call it. So before becoming DR, a router will always become BDR. Look here. First of all, 1.1.1 is elected as BDR. Then BDR is, and it promoted itself as DR. It promoted itself as DR. समझ में आई बात?
सबको कोई प्रॉब्लम इसमें? So first of all, every router will wait for DR BDR information in which packet? Hello packets for how much time? For wait interval. For how much time? For wait interval. Clear? But as R1 is the first router on which I have enabled OSPF, no DR and BDR are present on multi-access segment. Clear? So R1 will never receive information of DR and BDR in hello packet. Clear? So what will happen now? R1 will do election itself. First of all, R1 will elect itself as BDR, then as DR. Then R1 will promote itself to DR. And there will be no BDR. क्योंकि और कोई राउटर अभी सेगमेंट में कनेक्टेड भाई OSPF नहीं चल रहा ना, कनेक्टेड तो है, किसी और राउटर पे भी OSPF नहीं चल रहा. This thing is clear? Now, always keep one thing in mind. Up to the time BDR is not elected, DR will not generate type 2 LSA. Type 2 LSA किसकी इंफॉर्मेशन? टाइप 2 LSA में क्या इंफॉर्मेशन दी? How many routers are connected on multi-access segment? Agree? As DR is the only router present on multi-access segment, तो इंफॉर्मेशन डालेगा क्या उसमें? Agree? भाई वो अकेला ही राउटर होगा ना अगर DR होगा तो. Clear? So as soon as BDR is not elected, DR will never generate type 2 LSA. Any network LSA is there? क्या लिखा हुआ है? काउंट देखो ना, काउंट क्या लिखा हुआ है? 0. क्या लिखा हुआ है काउंट? ऐसे चेक कर लो यार. ओनली टाइप 1 LSA इज देयर. विच LSA? टाइप 1. नो टाइप 2 LSA इज देयर. कोई टाइप 2 LSA नहीं है. यस और नो? सबको समझ में आ रहा है? चलो आगे. नेक्स्ट रूल. एज DR is elected now, तो हमने पहली बात क्या सीखी? As DR is elected now, no more DR will be elected. Election will happen only for BDR. अब जो भी राउटर अगला आएगा वो अपने आप क्या बन जाएगा? BDR. Agree? And every other router which will be added on multi-access segment will become ब्रदर. कुछ नहीं होता, DR अदर होता है. लोग ब्रदर ड्रदर कुछ भी बोल रहे होते हैं इसको. इट इज DR अदर. ठीक है जी. DR other. Fine. Now what will happen? Let's say this router is R1 is DR, R2 is BDR. This is switch. This is 3. This is 4. This is 5. This is 6. Now all of these routers will form full adjacency with DR and BDR. किसके साथ करेंगे full adjacency form? DR के साथ भी और BDR के साथ भी. It means this guy will be listening to dot 5 and dot. This guy will also be listening to dot 5 and dot 6. Who will generate type 2 LSA? DR. Clear? And database exchange will be by default through DR. If DR will fail, who will become new DR? BDR. And these DR other routers. DR other will remain in which state? Which state? They will not exchange database. Whenever they have to send update, they will be sending it on dot 6. Clear? सबको समझ में आई ये बात? And I also introduced one new thing for all of you, that is wait state. What is wait state or wait timer?
whenever a router is added on a multi-access segment, first of all it will expect DR and BDR information from which messages? Hello packets. For how much time it will listen to hellos? 40 minutes. Sorry, 40 seconds. That 40-second timer is wait timer. And always keep one thing in mind: wait timer will always be equal to dead timer. R2 पे आ गया. Done. Router OSPF 2 network. Area 0. 100 दिया था. देखो शो IP OSPF कौन सी स्टेट में क्या हुआ है? वेट स्टेट में. हाँ जी. दिखा दूंगा यार, अब ऐसे बोल रहा हूं तो झूठ तो बोल नहीं रहा हूँ. हाँ. भाई आ गई नेबरशिप. पहले किस स्टेट में गया था? वेट में जाने का रीजन एक्सपेक्ट कर रहा था हेलो पैकेट में किसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी? डीआर और बीडीआर. क्या करूं इसको भी? एक मिनट यार. दिख गया भाई? अब नहीं दिख रहा भाई पीछे? हाँ भाई मोदी जी क्या कहते हो? दिख रहा? आपके जो साथ वाला उससे पूछो एक बार. नहीं दिख रहा? ठीक है भाई, फिर तो दिखा देते हैं. क्या करें, शर्मी की भी हाथ दो. दिख गया भाई? अब पढ़ना अच्छी तरह. अब ठीक है भाई, आ गई नेबरशिप. शो IP OSPF neighbor. Who is the neighbor? State of neighbor is state is full. It means this time two routers are connected on a multi-access segment. One is DR, other is VDR. Clear? सबको समझ में आई ये बात? एक कौन है? DR. दूसरा कौन है? VDR. क्लियर? सबको पता चली ये बात? देखो R1 पे जाके वेरीफाई करो. शो IP OSPF 2.2 is the neighbor. State is role is BDR. नेबर एक्सचेंज इवेंट, नेबर चेंज इवेंट दिख रहा है? उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है? नाउ गाइस लेट्स से वी आर ऑन अ मल्टी एक्सेस सेगमेंट. इन केस ऑफ OSPF, first state was down, second state was init. Still those states are same. Third state was two-way. Still that state is also same. But at the end of two-way state there will be DR and BDR election. At the end of two-way state. देखो मेरा कंसर्न है अभी यहाँ पे, ध्यान से सुनना. Why at the end of two-way state there is DR and BDR election? Clear? Two-way state के अंत में ही DR BDR election क्यों होता है? उससे पहले क्यों नहीं होता? देखो, try to understand. I am a router. Fine. Let's say these both routers are connected on a multi-access segment. He is DR and he is BDR. Clear? I am a new router that is getting connected on the segment. मैं एक नया router हूँ जो segment में भी connect होने जा रहा है. Fine. मैं connect हुआ, मेरे पास hello आएगी. In that hello packet, I will be receiving information of DR and BDR. Agree? पर मुझे नेबरशिप तो दोनों के साथ बनानी है. मुझे नेबरशिप तो सबके साथ बनानी है, दोनों के साथ भी नहीं, सबके साथ. एग्री? सो आई विल बी रिसीविंग हेलो फ्रॉम ऑल द राउटर्स. एग्री? सबको समझ में आ रही है बात? मुझे हेलो सबसे मिलेगी, मेरे को मिली, मुझे डीआर का भी पता चल गया और पता चल गया. अब एट द एंड ऑफ टू वे स्टेट आई विल इलेक्ट माई डीआर एंड बीडीआर. एग्री? नाउ आई नो द आईपी ऑफ डीआर. I know the address of DR. I will exchange updates only with DPDs only with DR. तो DPDs कैसे exchange होंगे? यूनिकास्ट या मल्टीकास्ट? यूनिकास्ट. कैसे exchange होंगे? मुझे सबके साथ तो exchange नहीं करना है. किसके साथ exchange करने हैं? DR के साथ. किसके साथ exchange करने हैं? DR के साथ. Agree? So in case of Ethernet segment,
DBDs are always exchanged as unicast. Reason? Because on this multi-access segment, I have to exchange my database only with DR. तो मैं DBDs किसके साथ एक्सचेंज करूंगा? मास्टर स्लेव इलेक्शन किसके साथ होगा? DR के साथ, और किसी के साथ नहीं. This thing is clear. But on the serial link, every type of communication was multicast. कोई भी कम्युनिकेशन हो, DR, BDR, मास्टर स्लेव इलेक्शन हो, अपडेट एक्सचेंज हो, सब कुछ क्या होता था? मल्टीकास्ट. बट इन केस ऑफ Ethernet segment, DBDs are exchanged as unicast. With whom? With the DR. With whom? क्योंकि मेरे को DBD डेटाबेस एक्सचेंज करना किसके साथ है? DR के साथ. तो DBD भी किसके साथ एक्सचेंज होंगे? DR के साथ. वो DBR की बात नहीं कर रहा. BDR पहली बात तो क्या BDR के पास मेरे को डेटाबेस एक्सचेंज किसके साथ करना है? DR के साथ. तो मैं DBD भी किसको भेजूंगा? DR अपडेट .6 पे अपडेट जाएगा, जो डेटाबेस जाएगा. मैं अभी किसकी बात कर रहा हूँ? DBD. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट डेटाबेस. याद करो, एक स्टार्ट स्टेट में DBD जाते थे, फिर एक्सचेंज और लोडिंग स्टेट में आपका डेटाबेस एक्सचेंज होता है. एग्री? दिस टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट DBDs. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेटाबेस एक्सचेंज. डेटाबेस एक्सचेंज किस पे होगा? .6 पे. वो कहानी वही है. पर DBD अभी किसके साथ एक्सचेंज होंगे? सिर्फ DR के साथ. अरे ये देखो, अब दिखाता हूं आपको. लेट मी कैप्चर लिंक ऑफ R3. All of you can see how many hellos I am receiving. 2, one from R1 or other from R2. ये R1 की hello है. Hello packet. Information of DR and BDR. IP address of DR is R1. IP address of BDR is 12002 R2. Clear? Any issues? No. R2 is also sending hello. In this hello packet, information is of DR and it means whenever a new router is connected on the multi-access segment, he will automatically get to know about who is DR and who is. तभी दोबारा इलेक्शन नहीं होते. अगर कोई रीजन पूछ लेना इस बात का, why DR election will not happen again and again, because whenever a new router will be added to multi-access segment, at that time he will directly get to know about who is DR and who is BDR. भाई लेट्स से इंडिया में 50 लोगों को सिटीजनशिप देते हैं इंडिया की, तो क्या हम अपनी गवर्नमेंट का इलेक्शन दोबारा से कराते हैं? नहीं, ऐसे थोड़ा होता है. अब 50 लोग आ जाएंगे इंडिया में, यूएस से. भाई हम इंडिया में सेटल हो रहे हैं, मोदी को हटाओ भाई, हमें नहीं पसंद, हम तो वोट नहीं करेंगे. भाई तेरे वोट करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना. सिमिलर बात यहाँ है. DR पहले बन चुका है, कोई नया राउटर आएगा उसे मानना पड़ेगा कि मैं ही कौन हूं? DR is not having any other choice. Is not having any other choice. This thing is clear? सब है तेरी सोनिए. देखो जब आपके सामने R3 पे एनेबल करूंगा, 3 डॉट 3 डॉट 3 डॉट राउटर OSPF नंबर 3. चलो एरिया 100 है, खोए हुए लोगों. वो तो क्या गया, आवाज आती होता तो. एरिया 100 है. अब इसको हेलो मिलेगी. देखो शो IP OSPF इंटरफेस ब्रीफ. कौन से स्टेट में गया हुआ है? क्यों गया हुआ है वेट में? एक्सपेक्ट कर रहा है ना हेलो पैकेट में किसकी इंफॉर्मेशन? DR और दोनों के साथ कर ली एडजेसेंसी फॉर्म. चले इस लिंक पे. ये दिख रहे हैं DBDs किसके साथ एक्सचेंज कर रहा है? DR के साथ कर रहा है. और कैसे कर रहा है? यूनिकास्ट. इधर देखो,
show IP OSPF. How many neighbors are there? 1 or 2? Who is DR? Who is BDR? 2. स्टेट क्या दोनों के साथ? एडजेसेंसी है ना? क्लियर? अब आगे देखो, टाइप 2 LS से देख लेते हैं थोड़ा सा, अनऑल कर दो। शो IP OSPF डेटाबेस. How many routers are connected on multi-access segment till now? 3. So how many type 1 LSs are there? 3. Agree? And how many type 2 LSs are there? 1. Who is generating link ID? IP address of DR. Link ID क्या होती है टाइप 2 LSA में? IP address of DR. एडवर्टाइजिंग राउटर कौन है? DR. राउटर ID क्या है DR की? कितनी देर हुई है जनरेट किए? क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक द इंफॉर्मेशन इन टाइप 1 LSA. कौन सी इंफॉर्मेशन चेक करेंगे? टाइप 1 LSA को देखने के लिए कीवर्ड कौन सा यूज करेंगे? राउटर. कौन सा कीवर्ड? एंड वी ऑलवेज चेक LSA यूजिंग विच थिंग. किसका LSA देखना है? 1.1.1 का R1. फाइन. व्हाट इंफॉर्मेशन इट इज गिविंग टू मी? लुक हियर ऑल ऑफ यू. R1 is saying a link is connected to a network 1.1.1.1/32. Second, a link is connected to a transit network. Transit network means multi-access segment. Transit network means multi-access segment. Who is DR on this multi-access segment? What is the IP address of this router's own interface? 12.0.0.1. Clear भाई? तो कहीं इंफॉर्मेशन है कौन सा नेबर रीचेबल है? भाई है? अरे दिख रही है? अरे सबसे पूछ रहा हूं. तो बताया था ना ये इंफॉर्मेशन अब टाइप 1 LSA में नहीं रहेगी. किस में आ जाएगी? कि कितने नेबर रीचेबल हैं एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे, क्योंकि सबके लिए वो नेबर्स क्या है? सेम. सबके लिए वो नेबर्स क्या है? क्लियर भाई? देखो अब, which database I have to open type 2? So how you will open type 2 database? क्या लिखोगे? नेटवर्क. फिर बताया था डेटाबेस ओपन करने के लिए क्या यूज करते हैं? लिंक आईडी. क्या यूज करते हैं? भाई देखो यार, क्वेश्चन मार्क डाल लेना घर जाके. पता है मुझे आप करोगे तो है नहीं प्रैक्टिकल, फिर भी मेरी जिम्मेदारी है बताना. दिखा दिया लिंक स्टेट आईडी. यहां लिखा भी हुआ बड़ा बड़ा. एड्रेस ऑफ एडवर्टाइजिंग राउटर 1.1.1.1 एंड स्लैश देखो सबनेट मास्क /80 तो है 12.0.0.0/8. कितने राउटर अटैच्ड है? 1, 2 और 3. एग्री? अब ये लो, चौथा भी ऐड कर लो. कर दे? अरे कर दे. क्यों? तो कुछ और करता नहीं करता, तो फेसबुक बहुत दिल से करता है. पता नहीं यार, वो तो भाभी बताएंगे. मैं क्या कह सकता हूँ यार इसमें. किसके साथ नेबरशिप एडजेसेंसी फॉर्म की है? 1 और 3 के साथ तो नहीं की. शो IP OSPF. DR के साथ स्टेट क्या है? फुल. फिर BDR स्टेट इज बट with DR other state is 2-way. Clear guys? Any issues? No. समझ में आई ये बात सबको? Now how many routers are DR other on this segment? 2, 3 and 4 and 1 is DR, 2 is BDR. देखो show IP interface. DR ने कौन सा ग्रुप ज्वाइन कर रखा है? .5 एंड .6. BDR ने भी, DR अदर ने .5, DR अदर ने .5. कमांड दिख गई सबको? क्लियर? सबको समझ में आया? सबको? तो टाइप 2 LSA जनरेट कौन करता है? DR. वो किसको देता है? सबको.
सबको बताता है दैट ऑन दिस सेगमेंट दीज नंबर ऑफ राउटर्स आर कनेक्टेड. क्लियर? नाउ एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आई हैव टू टेल यू हाउ राउटर्स विल फॉर्म राउटिंग टेबल. राउटर क्या कैसे बनाएंगे? राउटिंग टेबल. लुक हियर. Show IP OSPF database. Every router is having its type 1 LSA. How many routers are connected on the segment? 4. So how many type 1 LSAs are present? 4. Clear? देखो ये R1 का type 1 LSA है. This is type 1 LSA of R1. ये R2 का टाइप 1 LSA है. ये R3 का टाइप 1 LSA है. मैं वो कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं लिख रहा. आई एम जस्ट कॉपिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिट नेटवर्क. और ये R4 का टाइप 1 LSA है. डन भाई. अरे गैप कैसे खत्म होगा? हो गया ना भाई? ये विजिबल है? एक बार पढ़ लो फिर फटाफट इंफॉर्मेशन. तो क्या लिखा हुआ है? लिंक कनेक्टेड टू अ. ठीक है ना. ऑल ऑफ यू नो R1 इज R1 क्या है यहाँ पे? DR. और R2 क्या है? BDR. क्लियर? And all of us know that database exchange will always happen through DR. So first of all, I am talking here about control plane traffic. Which traffic? Control plane traffic means how updates are exchanged. इसकी बात करूंगा. अपडेट कैसे एक्सचेंज होंगे देखना. क्यों? सर वो बैठ जाता हूँ ना सर. क्यों? सर अटेंडेंस तो नहीं होगी सर मेरी. सर ऐसे ही सर बैठ जाता हूँ. ठीक है भाई. 4 राउटर कनेक्टेड है मल्टी एक्सेस सेगमेंट में. देखो भाई, मैं R4 पे क्या करूंगा? एक नेटवर्क ऐड करूंगा. तो R4 क्या सेंड करेगा? अपडेट. किसके लिए? DR के लिए. किस एड्रेस पे? .6 पे. सब लोग देखो,
R4 ने क्या भेजा, 12004 ने अपडेट किस एड्रेस पे, .6 पे। अपडेट देखो, अपडेट में कौन सा एलएस है, राउटर एलएस है ना, नेटवर्क की इंफॉर्मेशन। क्लियर। अब R1 ने उस अपडेट को किस पे फॉरवर्ड कर दिया, .5 पे। हाँ पूछो। ये तो अपडेट्स है, डीआर को मिल रहा है, वो तो बीडीआर को भी मिलेगा यार। सबको मिलेगा, प्रोसेस सिर्फ कौन करेगा, मतलब फॉरवर्ड अपडेट सिर्फ डीआर करेगा। तो पहले प्रोसेसिंग भी तो सबको करनी पड़ती थी ना। बीडीआर को जब नहीं, बीडीआर तो भी .6 पे लिसन कर रहा है ना, हाँ तो बीडीआर को अपडेट्स मिल गया। फॉरवर्ड नहीं करेगा अपडेट। हाँ फॉरवर्ड सिर्फ कौन करेगा, डीआर। डीआर हाँ जी। भाई एक्नॉलेजमेंट क्यों देगा, बताया तो था, एक्नॉलेजमेंट और अपडेट एक ही मैसेज में भेज देगा। ये भेज तो दिया, अपडेट किस पे भेज दिया, .5 पे। ये R4 के लिए किसका काम करेगा, एक्नॉलेजमेंट का। एंड फॉर एवरी अदर राउटर इट विल एक्ट एज अ अपडेट। देखो 3 और 2 क्या दे रहे हैं उसके लिए, एक्नॉलेजमेंट। 2 क्या है, बीडीआर है। बीडीआर किस पे एक्नॉलेजमेंट दे रहा है, .5 पे, लेकिन डीआर अदर एक्नॉलेजमेंट भी किस पे दे रहा है, .6 पे। तो डीआर अदर कोई भी मैसेज सेंड करता है, वेदर इट इज अपडेट और इट इज एक्नॉलेजमेंट, इट विल ऑलवेज सेंड इट ऑन .6 so that only DR can BDR listen to it. ये था डेटाबेस एक्सचेंज, जो हमेशा किसके थ्रू होगा, DR के थ्रू। क्लियर। तो ऑन अ मल्टी एक्सेस सेगमेंट इन केस ऑफ OSPF, all the control plane traffic is exchanged through DR. Clear. But if we talk about forwarding plane traffic, forwarding plane traffic means if we talk about routing table, how traffic will flow, यूजर का ट्रैफिक कैसे फ्लो करेगा, इट विल फ्लो डायरेक्टली। ऐसा नहीं होगा दैट इफ a LAN is connected to R3 and a LAN is connected to R4, they want to communicate, they will not communicate through DR, they will communicate directly. Clear. So only control plane exchange will be through DR, other exchange will be direct. समझ में आई बात। देखो प्रॉब्लम किसकी थी, OSPF की। प्रॉब्लम किसकी थी, तो OSPF कौन सा ट्रैफिक हुआ, कंट्रोल प्लेन। तो हमने कंट्रोल प्लेन की प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया एंड ऑल एक्सचेंज विल बी थ्रू DR. बट इफ वी टॉक अबाउट राउटिंग टेबल, लेट मी चेक R3's routing table. I am getting force network 4.4.4.4 4.4.4.2. नेक्स्ट टॉप इज डायरेक्ट, पिंग कर लो, सॉरी ट्रेस कर लो। कैसे जा रहा है ट्रैफिक, डायरेक्ट। इज इट ट्रैवर्सिंग थ्रू DR? नो। सो फॉरवर्डिंग प्लेन ट्रैफिक विल गो डायरेक्ट, बट कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक विल ऑलवेज पास थ्रू DR. अब दिखा देता हूं ऐसा क्यों है, व्हाई इट इज सो। Because every router present on the segment knows what is the interface IP of other router. देखो R1 की इंटरफेस IP है R1 के डेटाबेस में, R3 की इंटरफेस IP है R3 के डेटाबेस में, R4 की इंटरफेस IP है R4 के डेटाबेस में, R2 की इंटरफेस IP है R2 के डेटाबेस में। एग्री भाई, देखो ना दिख रही इंटरफेस IP, अब इतना बड़ा पिन दिख रहा फिर नहीं दिखेगा। R1 और R3 हर एक की इंटरफेस IP है। So whenever I am building routing table, let's say I want to install networks I am getting from R2. So next stop will be R2's interface IP. Let's say I have to install networks that I am getting from R3. So next stop will be R3's interface IP. And every router will be having all the database, all of you know. हर राउटर के पास सारे का सारा क्या होता है, डेटाबेस। क्लियर भाई, सबको समझ में आई इतनी बात, सबको। So let's conclude this thing. In an area, fine, there will be two types of LSS, type 1 and type. Let's say this is a diagram of an area, R1, R2, done.
area 100. So if someone asks you how many type 1 LSAs will be there, 1, 2, 3, 4, 5. 5 type 1. What about type 2? This is a multi-axis segment and this is also a multi-axis segment. So how many type 2 LSAs will be there? 2. कितने होंगे type 2? 2. एक इस सेगमेंट पे DR होगा और एक इस सेगमेंट पे DR होगा. There can be a chance that R2 is acting as DR on this segment also and on this segment also. इतनी बात समझ में आई सबको? तो DR हमेशा किसके वाइज सिलेक्ट होता है? इंटरफेस बेसिस पे. किस बेसिस पे? दिस थिंग इज क्लियर. तो लोग कंफ्यूज करने के लिए डायग्राम पता है कैसा बनाते हैं? R1, R2, R3, R4. हाउ मेनी टाइप 1 LSAs विल बी देयर? कितने होंगे? 4. हाउ मेनी टाइप 2 LSAs विल बी देयर? कौन कह रहा है 1? बहुत मारूंगा उसको. भाई एक सेगमेंट ये हो गया, सेकंड सेगमेंट एंड थर्ड सेगमेंट, तो 3 टाइप 2 LSAs. भाई जितने ईथरनेट लिंक होंगे उतने क्या होंगे? टाइप 2 LSA. जितने क्या होंगे ईथरनेट लिंक उतने क्या होंगे? भाई इस सेगमेंट पे 2 से ज्यादा राउटर कनेक्ट हो सकते थे. हाँ, इस पे भी हो सकते थे और इस पे भी हो सकते थे. सो ऑन एवरी ईथरनेट सेगमेंट देयर विल बी DR एंड BDR इलेक्शन. क्लियर गाइस? So if we talk about OSPF single area, in a single area 2 types of LSAs will be there, type 1, type 2. Type 2 are somehow different for serial links and somehow different for Ethernet link. Type 2 LSA will always present on, generated by whom? These LSA are generated by, अरे वाह, चल भाई इतना पढ़ लिया हमने. एक बात और बताई थी, हर राउटर अपना सेल्फ जनरेटेड LSA फ्लश कर देता है आफ्टर एवरी 30 मिनट्स. और एक बात और, वेन एवर you change any network information on one router in a area, that router will regenerate its type 1 LSA. दिखाया था ऐसा, याद है? देखो लेट्स से अगर मैं देखूं यहां पे, इनके डेटाबेस को कितना टाइम हो गया? काफी टाइम हो गया. मैं R4 पे जाता हूं, एक और नेटवर्क ऐड कर देता हूं. कर दिया. R4 पे वेरीफाई करो पहले. शो IP OSPF डेटाबेस. दिस डेटाबेस इज जनरेटेड अगेन, सॉरी, डेटाबेस दोबारा जनरेट हुआ है. जैसे ही हर राउटर के पास एक राउटर का डेटाबेस दोबारा आएगा, ही विल रन SPF अगेन. ही विल रन SPF अगेन. SPF का मतलब ट्री बनानी सिखाई थी. एक राउटर देखता है मेरे से कौन कनेक्टेड है, उससे कौन कनेक्टेड है, फिर राउटिंग टेबल बनाता है. याद है? तो जब भी एक राउटर को दूसरे राउटर का डेटाबेस दोबारा मिलेगा, SPF क्या होगी? दोबारा चलेगी. SPF क्या होगी? दोबारा चलेगी. ये देखो, R1 ने अपना डेटाबेस दोबारा जनरेट कर दिया. कितनी देर बाद? 1932 सेकंड. देखो यार, एग्जैक्ट 30 मिनट्स कभी भी नहीं होते. इट इज नेवर एग्जैक्ट 30 मिनट्स. 1800 सेकंड से लेके 2100 सेकंड के बीच में कभी भी फ्लश कर देता. अब दूसरी बात, सर मुझे ये जानना है ये 200-250 सेकंड एक्स्ट्रा क्यों लग रहे हैं? आपकी सिरदर्दी है, बुक मैंने दिया हुआ, मैं नहीं बता रहा.
ठीक है भाई, आज इसको जानना है, उसकी अपने सिरदर्दियां में, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है, ठीक है भाई। देखो अब R2 ने भी कर दिया, कितना टाइम हो गया था R2 के डेटाबेस को? 1967, 1800 से 2100 के बीच में टाइम है। अपना डेटाबेस उसने सेल्फ जनरेट दोबारा जनरेट कर दिया ना। और जब भी डेटाबेस दोबारा जनरेट होता है, सीक्वेंस नंबर एक इंक्रीमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? सीक्वेंस नंबर इंक्रीमेंट। क्लियर? तो एक बात और समझ में आई आपको, जब भी एक एरिया में एक राउटर का डेटाबेस चेंज होगा तो उससे उस राउटर को तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन बाकी सबके पास जब वो डेटाबेस जाएगा सबको एसपीएफ दोबारा चलानी पड़ेगी। दिखा दूं ये भी हम कैसे देखते हैं पीयूष, याद करिए खुद। देखो ये तो मैं मजाक करता हूं। कितनी बार एग्जीक्यूट हुई है? सर चले 2 मिनट की और बात रहेगी। देखो भाई, मैं R4 पे एक लूप बैक और बना देता हूं। सबसे पहले कमांड चलाओ शो आईपी ओएसपीएफ स्टैट्स। कितनी बार एसपीएफ एग्जीक्यूट हुई है? एक लूप बैक और ऐड कर दूं। डन। R1 पे कितने टाइम एग्जीक्यूट हुई है? तो R4 पे बनाया एक लूप बैक। कितनी बार होगी एग्जीक्यूट? ठीक है ना। तो एक एरिया में जब भी एक राउटर की कॉन्फ़िगरेशन, कॉस्ट भी चेंज करोगे अगर, ये तो मैंने नेटवर्क ऐड किया है, इफ यू चेंज द कॉस्ट आल्सो एट दैट टाइम आल्सो द अपडेट विल बी सेंट थ्रू आउट द एरिया एंड ऑल द राउटर्स विल रन एसपीएफ अगेन। क्लियर? ये तो प्रॉब्लम है बहुत बड़ी कि एक राउटर में एक चेंज आएगा और हर राउटर दोबारा क्या चलाएगा? एसपीएफ। That's why I divided a single area into multiple areas. तभी OSPF में क्या यूज करते हैं हम? मल्टीपल एरिया। कल पढ़ाऊंगा टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 LSA। मुश्किल नहीं है, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा, बट द मेन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन OSPF इज टाइप 1 एंड टाइप 2। बता देता हूँ रीजन। द पीपल हु आर हियर फॉर CCI राउटिंग एंड स्विचिंग, इफ आई टॉक अबाउट टाइप 1 and टाइप 2 LSA, the new thing I will be telling you in CCI regarding type 1 and type 2 LSA will be LSA throttling and SPF throttling. क्या बोला मैंने? थ्रॉटलिंग का मतलब आज के बाद याद रखना कंट्रोलिंग। थ्रॉटलिंग का मतलब क्या होता है? कंट्रोलिंग। नाउ देयर इज अ कंसर्न, मेरा कंसर्न है जो मैं आपको सिर्फ बता के छोड़ दूंगा, आगे कोई बात नहीं करूंगा। तभी आप टाइप 1 टाइप 2 LSA थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे। लेट्स से मेरे राउटर में बार-बार चेंज हो रहे, तो मैं बार-बार टाइप 1 LSA जनरेट करूंगा नहीं, तो मैं उस LSA जनरेशन को क्या कर सकता हूं? कंट्रोल। क्लियर? मैं क्या कह रहा हूं? लेट्स से मेरे पे एक लिंक डाउन गया, मैंने टाइप 1 LSA जनरेट किया, फिर लिंक दोबारा डाउन गया, मैंने फिर क्या जनरेट किया? तो मैं बार बार जनरेट ही करता रहूंगा। मेरे जनरेट करने से प्रॉब्लम क्या है? बाकी सब राउटर्स पे क्या कॉज हो रही है? इंस्टेबिलिटी। Because of my LSA generation, instability is caused on every other router. Because as they will receive my LSA, they have to run SPF again. Clear? So there will be two things. First of all, I will control myself from generating a particular LSA. Second, I can also control SPF on a router. मैं राउटर में भी क्या कंट्रोल कर सकता हूँ कि SPF कितनी देर के बाद चलानी है। क्लियर? तो ये कंसर्न्स आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको टाइप 1 और टाइप 2 LSA अच्छे से आता हो। प्लीज ट्राई टू रीड अबाउट इट। आप इस क्लास में हो? चलो बैठ जाओ फिर जाके पीछे। चल भाई।